Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now in every lecture, we discuss the 10 important question of CSIR NET. Now today, we will discuss the 10 question in which there are 6 questions from real analysis, 2 questions from complex analysis and 2 questions from applied. Now, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे प्रेस कर ले ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रियल एनालिसिस, दैट इज वी हैव गिवन अ डिटरमिनेंट मैप एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट डिटरमिनेंट मैप at a h and k. Means here for v is a vector from r square and w is a v and w are a vector from r square. Now consider a determinant map which is defined as the usual definition, that is if suppose v1 is equal to v1 v2 and w is equal to w1 w2, then determinant is v1 into w2 minus v2 into w1. This is the definition of determinant. Now here we have to evaluate the derivative of determinant map at the point hk, which is belongs to r square cross r square. That means h is nothing but h1 h2 and where k is k1 and k2. Now here v is equal to v1 v2 and w is equal to w1 w2, which is belongs to r square, and vw belongs to r square cross r square. Similarly, we have to evaluate the derivative of determinant map at h k, where h is h1 h2 and k is equal to k1 k2 belongs to r square, and h k belongs to r square into r square. मीन्स इस तरीके से हमारे पास v और w वेक्टर दिया है और h और k वेक्टर दिया है. Now here define the determinant map, that is determinant map of vw is nothing but v1 into w2 minus v2 into w1. This is given कि dvw is nothing but v1 into w2 minus v2 into w1. Now here we have to evaluate the derivative of this determinant map at a point hk. That is, if we take the derivative of determinant at hk, we get del d by, suppose this is d, del d by, first we take at a v1 at h1 plus del d by with respect to v2, here h2 plus del d with respect to w1, here k1 plus del d by del w with respect to k2. This is the derivative of determinant map. Now what is d? d is nothing but v1 w2 minus v2 w1. मीन्स यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो दिस इज 0 because it is not a function of v1. So therefore the derivative of v1 is 1 and this is treated as a constant. So therefore this is w2 h1. Similarly, if we differentiate or take a derivative with respect to v2, we get minus w1 and this is h2. Similarly here, if we take derivative with respect to w1, we get minus v2 and k1. Similarly, if we differentiate with respect to w2, we get only v1 into k2, which can be written as
W2H1 minus W1H2, and this can be written as suppose K2V1 minus V2K1, but this is nothing but the derivative of this is H1 means HW plus this is V, that means V and K. Now check the option, means हमारे पास जो ऑप्शन होंगे, हमारे पास डेरिवेटिव मैप क्या आ रहा है, हियर द डेरिवेटिव मैप इज dw प्लस dvk, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ hw प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ vk, मीन्स ये ऑप्शन राइट होगा, बाकी b, c एंड d ऑप्शन आर रॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट वन इज कि हियर fn be a sequence of integrable function defined on an interval ab, मीन्स हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ, हमने देखो सीक्वेंस ऑफ नंबर पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, एंड दिस इज सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन, मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल फंक्शन होंगे, या फिर हम इसे कह सकते हैं मेजरेबल फंक्शन का एक सीक्वेंस है. किस इंटरवल पे, ऑन द इंटरवल 0-1. नाउ हियर देयर आर 4 ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरीवेयर. A dot is nothing but almost everywhere. So first we will learn what is the definition of almost everywhere, or what is the meaning of, actual meaning of almost everywhere. Then their integral converges to 0. Now first we understand कि what is the definition of almost everywhere. Means almost everywhere का definition क्या होता है. AE, that is almost everywhere. When we say that कि Fn is almost everywhere, सपोज हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, सपोज Fn F2 solve up to Fn, and we say that कि this sequence Fn converges to F or Fn converges to 0 everywhere. मीन्स अगर कोई फंक्शन कन्वर्ज हो रहा है 0 पे एवरीवेयर, या फिर कोई Fn ऑफ x कन्वर्ज हो रहा है किसी एफ पे एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसका मतलब क्या होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहता हूं कि सीक्वेंस मेरा सपोज किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि x इज इक्वल टू e, इस इंटरवल पे वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस होगा इफ, पहली कंडीशन तो ये है कि जो fn ऑफ x है वो कन्वर्ज होना चाहिए f ऑफ x पे फॉर एवरी e माइनस ई नॉट. मीन्स सेट में से ई नॉट को हटा देंगे तो जितने भी पॉइंट बचेंगे वो सारे पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वो कन्वर्जेंस होना चाहिए एफ ऑफ एक्स पे. जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है 0, यहाँ पे सपोज ये एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है. सेकेंड कंडीशन ये है कि ये जो हमारे पास जो ई सेट एग्जिस्ट होगा, मतलब यहाँ पे एक एग्जिस्ट होगी, देयर एग्जिस्ट ई नॉट सेट कि एफ एन कन्वर्जेस्ट होगा एफ ऑफ एक्स पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अगर वहां पे देयर एग्जिस्ट इफ देयर एग्जिस्ट ई नॉट विच इज सबसेट ऑफ ई, मतलब ई के पास एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट होगा ई नॉट सच दैट कि ये एफ एन कन्वर्ज करना चाहिए एफ ऑफ एक्स पे फॉर एवरी ई माइनस ई नॉट, यानी कि इस ई सेट में से सपोज ये मेरे पास ई सेट है, उसका मैं एक सबसेट ले लूंगा ई नॉट, ठीक है. बट ई नॉट कैसा होना चाहिए, इसका मेजर 0 होना चाहिए, दैट मीन्स 0 मीन्स ये जो ई सेट है वो 0 मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि उसका जो मेजर करेंगे जो उसकी वैल्यू आएगी मेजर सेट कितना होना चाहिए 0. अगर उस सेट का मेजर 0 है और ई में से उस मेजर 0 सेट को हटा देंगे तो एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्ज होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ई नॉट, यानी कि ई माइनस ई नॉट के हर एक पॉइंट पे अगर एफ एन एक्स कन्वर्ज कर रहा है एफ ऑफ एक्स पे, एंड वेयर ई नॉट सच दैट कि देयर मेजरेबल सेट इज देयर मेजर इज 0.
तो इसे हम कहते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो सिंपल ये कि एफ एन कन्वर्ज होगा एफ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर इफ देयर एग्जिस्ट सबसेट ऑफ ई नॉट सच दैट कि देयर मेजर इज 0 एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ई नॉट। ये डेफिनेशन है। तो अब हम एग्जाम्पल लेके काउंटर एग्जाम्पल लेके सब एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। अब सपोज मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, सपोज एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एन वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 1 by n and second is 0 when x belongs to 1 by n to 0. So this is our fn of x. Clearly for every 0 to 1 by n this function is bounded. n है 0 से लेके 1 by n तक ये फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड होगा and 0 is also bounded. That means the fn of x is bounded and also almost everywhere converges to 0. क्यों 0 पे कन्वर्ज हो रहा है? क्योंकि अगर ये पूरा सेट E है, E क्या है हमारे पास 0 1, हियर E इज 0 1, इफ वी पूरे सेट में से अगर मैं इस सेट को हटा दूं और ये सेट कैसा है, इस सेट का अगर हम मेजर करेंगे फॉर एग्जांपल 0 1 by n तो ये एक 1 by n तो ये 0 से लेके 1 होगा, फिर 0 से लेके 1 by 2 होगा। ऐसे हर सेट का जब हम मेजर निकालेंगे तो वो कितना होगा 0। मीन्स ये एक ऐसा सेट है जिसका मेजर 0 है तो उस पे n है। तो अगर ये सेट को हटा देंगे जिस सेट का मेजर 0 है तो ये ऑलमोस्ट क्या है 0 है, मतलब ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस है 0 पे। तो ये एक एग्जांपल है। बट अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे अब सपोज हमें इंटीग्रेशन निकालना है 0 to fn of x dx, तो ये क्या होगा, अब 1 by n के बाद तो 0 है, दैट मीन्स सिर्फ हमें कहां तक लेना है 0 to 1 by n fn of x dx, दैट इज 0 to 1 by n। बट fn of x को हमने क्या डिफाइन किया है 0 से लेके 1 by n तक n dx। तो देयरफॉर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो n तो बाहर आ जाएगा, तो 1 by n माइनस 0 यानी 1 by n, 1 by n में से n कैंसिल यानी कि सिंपल 1 आएगा। तो देयरफॉर 0 to 1 fn of dx ये कन्वर्ज कर रहा है 1 पे। तो यहां से अब देखते हैं, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि fn x कन्वर्ज करेगा 0 पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन a to b fn of x क्या होना चाहिए 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए। बट ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया है कि fn of x कन्वर्ज कर रहा है 0 पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बट a to b fn of x डज नॉट कन्वर्ज टू 0, वो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर a to b fn of dx कन्वर्ज करेगा 0 पे, देन fn of x 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगी। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल देंगे। अब थर्ड एग्जांपल ये कह रहा है कि इफ fn of x इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड ईच fn इज बाउंडेड। तो क्लियरली हमने देखा था कि हर एक fn बाउंडेड था, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस भी है। बट ये कह रहा है कि इसके बाद जो ये इंटीग्रेशन होगा वो 0 होगा। बट ये ऑप्शन हमारे सेम ऑप्शन से ये एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ये कह रहा है कि fn of x कन्वर्ज करेगा 0 पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन fn x आर यूनिफॉर्मली बाउंडेड, देन a to b fn of dx कन्वर्जेस टू 0। एंड दिस इज हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम का यूज हम करेंगे। तो वो थ्योरम ऐसा है कि वो कहता है कि अगर सपोज fn of x ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस है एंड ईच fn आर यूनिफॉर्मली बाउंडेड। अब यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब ये होता है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो सिंपल कंटिन्यूअस में जो हम डेल्टा चूज करते हैं वो डिपेंड नहीं करता है एप्सिलॉन पे। ठीक उसी तरीके से हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं सिंपल नंबर्स में, तो वहां पे जो पॉइंट जो स्टेज होता है एंड नॉट एग्जिस्ट होती है, विच इज नॉट डिपेंड ऑन, मीन्स वो डिपेंड नहीं करता है किस पे एप्सिलॉन पे। तो वहां पे हम ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ना कंटिन्यूटी में। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, तो वहां पे जो डेल्टा है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे।
तो वो तो अगर डिपेंड कर रहा है तो मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा, अगर डिपेंड नहीं करता तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी होता है। तो कंटिन्यूटी में डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड नहीं करता है, और एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है एंड डजंट डिपेंड ऑन पॉइंट। ठीक उसी तरीके से जब हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस देखते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में, तो वहां पे भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के लिए जो एन नॉट एग्जिस्ट होती है वो डिपेंड करना चाहिए ओनली ऑन एप्सिलॉन एंड डजंट डिपेंड्स ऑन अ पॉइंट। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे यूनिफॉर्मली बाउंडेड का भी यही डेफिनेशन है कि जो एफ एन ऑफ एक्स है उसके लिए एक कांस्टेंट एम एग्जिस्ट होना चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि एफ एन ऑफ एक्स इज लेस देन एम है, तो ये जो m है वो डिपेंड करना चाहिए ओनली ऑन, मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए, वो इस x पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि x के लिए हर x के लिए वो चेंज होगा। तो ये एक कॉमन m एग्जिस्ट होना चाहिए कि सच दैट कि इच एफ एन इज बाउंडेड, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो यूनिफॉर्मली का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो भी देयर एग्जिस्ट जो हम बोलते हैं एन नॉट या डेल्टा, वो डिपेंड करना चाहिए ओनली ऑन एप्सिलॉन एंड डजंट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट। तो दैट इज यूनिफॉर्मली का प्रॉपर डेफिनेशन होता है। तो अगर ये डेफिनेशन है तो देन ए टू बी एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस टू 0। तो जो थ्योरम ऐसा है कि बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम कि इफ एफ एन ऑफ एक्स converges to f of x almost everywhere, then and fn of x are uniformly bounded, then integration a to b fn of dx converges to f of x। तो therefore similarly यहाँ पे fn of x कन्वर्ज करेगा 0 पे, यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी है, तो therefore a to b fn of dx कन्वर्ज करेगा 0 पे। तो ये बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज करके ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब इसी तरीके से सी ऑप्शन बी ऑप्शन को भी हम एग्जांपल लेके एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऐसे एग्जांपल एग्जिस्ट होते हैं कि ए टू बी एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्ज करेगा 0 पे, देन एफ एन ऑफ एक्स ऑलमोस्ट एफ एन ऑफ एक्स डज नॉट कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, बाकी डी ऑप्शन इज ओनली करेक्ट होगा बाय यूजिंग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। Now the next example is कि for x is equal to x1 x2 solve up to xt, means ये x belong कर रहा है r s to d को, where d is any natural number and p is a greater than 1। तो डिफाइन किया mod xp, ये सिंपल हमारे पास lp स्पेस है। सेकेंड इन्फिनेटिव नॉर्म इन्फिनेटिव है, ये हमारे पास एक मैक्सिमम नॉर्म कह सकते हैं इसे। तो हमारे पास इनइक्वालिटी दिया है कि नॉर्म x1 इज ग्रेटर देन नॉर्म x2, अरे नॉर्म ऑफ x2। तो ये सिंपल यहाँ पे ये जो 1 2 लिखा है ये हमारे पास इसमें रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये p के प्लस पे 1 आ जाएगा, तो उसे हम L1 भी कहते हैं। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो उसे L2 भी कहते हैं, या फिर 1 नॉर्म स्पेस 2 नॉर्म स्पेस, और ये हमारे पास मैक्सिमम नॉर्म स्पेस होता है, ठीक है। इसे हम मैक्सिमम नॉर्म स्पेस भी कहते हैं या फिर इन्फिनिटी नॉर्म स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम प्रूव करते एक एक करके। पहले ये समझते हैं हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्सपी को कैसे डिफाइन किया है। ये हमारे पास समेशन मॉड एक्स आई पी रेस टू 1 बाय पी, इस तरीके से हमारे पास डिफाइन किया है मॉड एक्सपी। एंड मॉड एक्स इंफिनिटी को डिफाइन किया है कि द सुप्रीमम ऑफ ऑल एक्स, यानी कि जितने भी जे होंगे x1 x2 x3, जो उसमें सबसे मैक्सिमम मॉड होगा वो हमारा x इंफिनिटी होगा। तो देयरफॉर अगर हम सपोज x1 निकालेंगे तो ये x1 क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, यानी कि जो यहाँ पे टर्म होंगे वो कितने, अब 1 टर्म नहीं होंगे, n टर्म नहीं होंगे, सिर्फ कितना होगा, सिंपल 1। तो j इज गोइंग फ्रॉम 1 to n बोल सकते हैं, x j सच दैट ये हमारे पास सिर्फ 1 बाय, तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन j x j इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा नॉर्म ऑफ x1।
ठीक इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं नॉर्म x2 समेशन j इज गोइंग फ्रॉम समेशन xj 2⁻1/2, यानी कि समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर का रूट लेना है, यानी यूक्लिडियन स्पेस भी कह सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि इफ 0 is greater than p is greater than q, then norm of xp is greater than norm of xq। ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर p ग्रेटर देन p लेस देन q है तो नॉर्म ऑफ xp इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ xq। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्म ऑफ x1 इज इक्वल टू समेशन x1 रेज टू 1/1, तो यहां पे सिंपल हम 1 लिख सकते हैं। बाय यूजिंग कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi रेज टू 1/2 रेज टू 1/2 समेशन 1 रेज टू 1/2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वेयर j की वैल्यू, हाँ यहाँ j की वैल्यू 1 से कहां तक जा रही है d, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहले ही गिवन दिया है कि जो x1 x2 सॉल्व अप टू कहां तक है, d तक है। तो देयरफॉर अब ये जो हमारे पास है ये कुछ और नहीं बल्कि अब ये तो हमारे पास हो जाएगा सिंपल नॉर्म ऑफ x2, बट ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसका हम सम करेंगे कहां से कहां तक, d तक, तो ये d⁻2 यानी कि सिंपल रूट d हो जाएगा। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ x1 इज लेस देन समेशन ऑफ x2 इज ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। तो चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, कि नॉर्म ऑफ x1 इज लेस देन रूट d नॉर्म ऑफ x2। और ये रिजल्ट तो हमेशा याद रखना है कि नॉर्म ऑफ x1 इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ x2 इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ x इंफिनिटी। ये हमारे पास एक रिजल्ट, तो मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं बी और सी में से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो एक इनइक्वालिटी और है, the norm of xp is always greater than norm of x infinitive and always less than n raised to 1/p norm of x infinitive। p की वैल्यू अगर सपोज हम 1 पुट करते हैं तो therefore norm of x infinitive is less than norm of x1 is less than 1 raised to d raised to 1/1 norm of x infinitive। तो therefore norm of x infinitive is less than norm of x1 is less than d norm of x infinitive। मीन्स हमारे पास ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो चेक करते हैं कौन सा है, डी। तो यानी कि फर्स्ट बी एंड डी ऑप्शन इज राइट एंड सी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो सिंपल रिजल्ट का यूज करके हम ये नॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी यूज किया और सिंपल कुछ रिजल्ट है कि जो नॉर्म ऑफ एक्सपी होता है, बट डायग्राम से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि नॉर्म एक्सपी इज बिटवीन नॉर्म एक्स इन्फिनिटिव एंड n⁻1/p norm x infinitive। Now the next question is consider the map where f is a function going from r square to r square defined by कि f of x y is equal to 3x minus 2y plus x square and 4x plus 5 plus, मीन्स हमारे पास ये एक आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर तक एक मैप गिवन है और यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग लिखा है। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, द फर्स्ट ऑप्शन इज df 0 इज डिसकंटिन्यूअस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि f जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट 0 0 पे,
या फिर सेकेंड f इज कंटिन्यूअस एट 0 0. थर्ड इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट तो ऑप्शन हाँ ठीक है, तो ऑप्शन इसमें एक ऐसा है कि कंटिन्यूअस बताना है, डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है और इनवर्टिबल बताना है. ठीक है, तो ऑप्शन आपके पीडीएफ में रहेगा, तो वहां से आप देख लेना. तो यहां पे हमारे पास क्या गिवन है कि एक एफ ऑफ एक्स वाई दिया है. तो एफ ऑफ एक्स वाई को कैसे डिफाइन किया है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5y प्लस वाई स्क्वायर. अब क्लियरली ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है. मीन्स दोनों फंक्शन कैसे होंगे, कंटिन्यूअस है. मीन्स ये हमारे पास f1 भी कंटिन्यूअस है, f2 भी कंटिन्यूअस है. देयरफॉर ये जो f ऑफ एक्स वाई ये कंटिन्यूअस होगा. मीन्स कंटिन्यूअस तो है ये एट 0 0 पे. सेकेंड हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 0 एफ ऑफ सी प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच. जहां पे सी क्या होता है हमारे पास पॉइंट, जिस पॉइंट पे चेक करना है. तो हियर सी इज इक्वल टू 0 0 एंड व्हाट इज यू, यू इज द डायरेक्शन, दैट इज यू इज इक्वल टू u1 एंड u2. तो सिंपल फॉर्मूला का यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यहां पे इसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होगी. ना अब हमें थर्ड चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है. क्लियरली ये डिफरेंशिएबल भी हम इसे शो कर सकते हैं. तो हम कैसे लेते हैं यहाँ पे डी एफ एट 0 0 और ये भी चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं. तो यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट मैप निकालेंगे. तो डिटर्मिनेंट मैप कैसे निकालते हैं, F1, तो हियर F1 इज, ये हमारे पास F1 है और F2 है. तो यहाँ पे F1 विथ रिस्पेक्ट टू X, F1 विथ रिस्पेक्ट टू Y, F2 विथ रिस्पेक्ट टू X, F2 विथ रिस्पेक्ट टू Y. और किस पॉइंट पे इवेल्युएट करना है, एट 0 0 पे. अब यहाँ पे अगर हम F1 को डेरिवेटिव करें, द डेरिवेटिव ऑफ F विथ रिस्पेक्ट टू X, वी गेट 3 एंड दिस इज 2X. बट अगर 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 3. नाउ इफ वी डेरिवेटिव F1 विथ रिस्पेक्ट टू Y, दिस इज 0 एंड दिस इज -2. तो मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -2. सिमिलरली इफ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू X, F2 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू X, तो यहां पे ये दोनों टर्म तो 0 और 4X का क्या हो जाएगा, सिंपल 4. नेक्स्ट वन इज, यहां पे जब अगर हम इसे डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू F2 को विथ रिस्पेक्ट टू Y, तो ये तो 0, ये भी 0, अरे यहाँ पे 2Y बट 0 पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे सिंपल 5. मीन्स हमारे पास यार, अब अगर इसका हम सपोज डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये कितना होगा, 5 3 15 माइनस इज 23. तो ये क्या है, नॉन जीरो. तो देयरफॉर ये डिफरेंशिएबल भी होगा एट 0 0 पे, और कैसा होगा, नॉन इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल होगा. ठीक है, तो हमारे पास जिस ऑप्शन में डिफरेंशिएबल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कंटिन्यूअस एंड इन्वर्टिबल वाला ऑप्शन राइट होगा. बाकी जिसमें डिसकंटिन्यूअस है वो रॉन्ग होगा, जिसमें नॉन इन्वर्टिबल है वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे. तो पीडीएफ में जो भी ऑप्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, इस फंक्शन का इन्वर्टिबल भी है, और इसके अलावा ये जो फंक्शन है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है. तो देयरफॉर जो भी ऑप्शन रहेगा वो राइट हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT JAM, which is related to length of the curve, area of the curve under the x-axis, and x is equal to a, x is equal to b, and s is the area of the surface generated by revolving the curve about x-axis between x is equal to a and x is equal to b. Then we have to check which inequality is
करेक्ट। तो यहां पे हमारे पास सपोज मैं ये कह रहा हूं कि सपोज ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक कर्व जा रहा है। सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब इस कर्व की क्या क्या हम बता सकते हैं। फर्स्ट तो हम ये कह सकते हैं कि इस कर्व का कुछ लेंथ होगा, तो सपोज एल को कह देते हैं लेंथ ऑफ द कर्व। ये हमारे पास हो जाएगा सपोज लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है। सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, इसके अंडर में जो एरिया होगा, ठीक है, इसके अंडर में जो एरिया होगा ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो एरिया, और जहां पे x इज इक्वल टू ये a पॉइंट है और ये हमारे पास x इज इक्वल टू b पॉइंट है। तो a इज द एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स, एरिया ऑफ द कर्व अंडर एफ ऑफ एक्स, अंडर एफ ऑफ एक्स एंड बिटवीन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, इसके बीच में। अब अगर सपोज इसी को रिवॉल्व कर दे, इस कर्व को हम घुमा के विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। मीन्स हमारे पास ये पूरी इस तरीके से गोल एक मीन्स ये पूरा राउंड हो जाएगा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास एक सरफेस बनेगा। सरफेस कैसे, रिवॉल्विंग द कर्व, मीन्स हम कर्व को रिवॉल्व करेंगे अराउंड द x एक्सिस। मीन्स इसको ऐसे पूरी तरीके से सराउंड करके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, ठीक है। तो 3D में एक शेप बनेगा। तो ये जो सरफेस का पूरा एरिया होगा इसे हम क्या कहेंगे, S। तो ये हमारे पास L, A और S, और एक कंडीशन दिया है कि वेयर y इज बाउंडेड दैट इज f ऑफ x। मीन्स हमारे पास गिवन दिया है कि जो f ऑफ x है वो लेस देन के है, यानी कि f ऑफ x लेस देन के है, और ये हमारे पास तीनों कंडीशन थी। पहली चीज L, लेंथ ऑफ द कर्व क्या होता है, a टू b रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, ये हमारे पास लेंथ ऑफ द कर्व है। सेकेंड, अगर सपोज हमें एरिया निकालना है तो हम सिंपल फंक्शन के प्लेस पे 1 लिख देंगे, a टू b एफ ऑफ एक्स dx। और थर्ड, अगर हमें सरफेस निकालना है रिवॉल्विंग अराउंड द x एक्सिस, तो ये हमारे पास हो जाएगा a टू b 2 पाई y रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। ये हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास s हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द कर्व, ये हमारे पास एरिया ऑफ द कर्व, और ये हमारे पास सरफेस ऑफ द कर्व। अब ये हमारे पास 3 रिलेशन दी हुई है, तो इस 3 इक्वालिटी में से कौन सा ट्रू होगा ये हमें प्रूव करना है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो s इज इक्वल टू a टू b 2 पाई रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। वी नो दैट इसकी वैल्यू कुछ तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू अगर कुछ पॉजिटिव है तो ये तो लेस देन होगा 0 टू a टू b 2 पाई dx। सॉरी पहले हाँ, तो s इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, a टू b 2 पाई y रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो y है ये लेस देन m, लेस देन हमारे पास गिवन है कि लेस देन k, तो इसे हम लिख सकते हैं लेस देन a टू b 2 पाई k 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, ठीक। अब हम इसे इज इक्वल टू, अब ये 2 पाई के कांस्टेंट इसे बाहर ले लेंगे, तो 2 पाई के इंटीग्रल a टू b 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। बट दिस इज नथिंग बट अ लेंथ ऑफ द कर्व, ये हमारे पास डेफिनेशन है लेंथ ऑफ द कर्व। तो देयर फोर इज इक्वल टू 2 पाई के एल, तो देयर फोर एस इज लेस देन 2 पाई के एल। तो
तो ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। तो मीन्स अब ये देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ये ऑप्शन तो क्लियरली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एस के किसी के लेस देन नहीं आ रहा है। ठीक इसी तरीके से बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास ए और सी में से एक ऑप्शन राइट है। तो अब ये चेक करना है कि एस की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 2 पाई के एल है या फिर एस इज ग्रेटर देन 2 पाई ए। अब ये चेक करना है। नाउ दैट इज वी नो दैट एस इज इक्वल टू एस हमारे पास क्या है ए टू बी 2 पाई 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स। तो यहां पे ये कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू होगी जो मैं पहले बताता कि एक सपोज पॉजिटिव वैल्यू है। अगर इसमें से मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू को कम कर दूं तो ये अगर 0 होगा तो इक्वल होगा, और अगर सपोज इस वैल्यू को हम अगर ये वैल्यू कुछ 0 से ग्रेटर है और ग्रेटर देन मीन सपोज मैं कह रहा हूं कि 2 है और यहां पे सपोज कोई नंबर 0.1 है और इस पॉइंट को मैं अगर हटा दूं मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन होगी। तो देयर फोर ए टू बी 2 पाई वाई डी एक्स ये हमारे पास हो जाए। अब यहां से 2 पाई को हम बाहर ले सकते हैं। ये हमारे पास ए टू बी वाई डी एक्स है। तो अब मैं कह रहा हूं कि ए टू बी वाई डी एक्स है। अब ये क्या है हमारे पास एरिया। तो देयर फोर 2 पाई इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ द कर्व। तो देयर फोर 2 पाई ए is less than is equal to s and s is less than 2 pi kn by 1 and 2। तो ये हमारे पास रिलेशन होगा। तो देखते कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें से। 2 pi a is less than s, s is less than 2 pi kn मीन्स हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी ए बी और डी ऑप्शन रॉन्ग। Now the next question is let f is a function going from r to r defined by f of t is equal to t square। मीन्स हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और f of t को इस तरीके से डिफाइन किया है। u एक नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट है r। तो इसमें सिंपल एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर सपोज हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, ये सपोज a है और ये b है, और इसके बीच में अगर एक कोई कंटिन्यूअस मैप जा रहा है तो यहां से अगर हम ओपन सेट उठा रहे हैं तो यहां पे भी क्या मिलेगा ओपन सेट मिलेगा। मीन्स अगर ये ओपन सेट है ए तो जिसका इनवर्स इमेज होगा वो भी ओपन सेट होगा। अगर ये क्लोज सेट है तो उसका इनवर्स इमेज भी क्या होगा क्लोज सेट होगा। ऐसा कब है कंडीशन जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगी। और ये कन्वर्स वाला पार्ट भी होता है कि अगर यहाँ पे हम कोई भी ओपन सेट ले रहे हैं तो उसका इनवर्स इमेज अगर ओपन सेट मिलेगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इफ टेकिंग एनी क्लोज सेट इफ देयर एवरी फॉर एवरी क्लोज सेट that inverse set is always also closed then we say that कि f is continuous। यानी कि हर ओपन सेट के लिए अगर उसका इनवर्स इमेज ओपन है मीन्स हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी हर एक क्लोज सेट के लिए अगर उसका इनवर्स इमेज क्लोज सेट है दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सिंपल इस रिजल्ट का यूज करके ये कह रहा है कि f r से लेके r तक। अब f of t इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्लियरली टी स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और ये कह रहे हैं कि u अगर कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट होगा r का। अब सिंस u अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है r का तो इसका इनवर्स इमेज भी क्या होगा ओपन सेट। मीन्स हमारे पास f इनवर्स u इज ओपन सेट। f ऑफ u के बारे में कुछ नहीं कह सकते, f ऑफ u क्लोज होगा ये भी कुछ नहीं कह सकते। मीन्स से भी ये कह सकते हैं कि अगर u ओपन सेट है तो उसका इनवर्स इमेज भी क्या होगा ओपन सेट। क्यों? क्योंकि ईयर f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सिंपल रिजल्ट का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 167 विच इज क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हमारे पास यहाँ पे एक h स्पेस दिया है वेयर h इज ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज y इज ग्रेटर देन 1, यानी कि उसका इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 1। यानी कि अगर हम डायग्राम बनाए मीन्स हमारे पास एक अपर हाफ प्लेन है जिसे h प्लस से डिनोट किया है, फिर लोअर हाफ प्लेन है जिसे h नेगेटिव से। ठीक इसी तरीके से जो राइट वाला पार्ट है इसे L प्लस और जो लेफ्ट पार्ट है उसे L माइनस से। तो ये हमारे पास 4 हाफ प्लेन दिए। तो H प्लस मीन्स y ग्रेटर देन 0, मतलब
अपर वाला पार्ट, h माइनस दैट इज y इज लेस देन 0, लोअर पार्ट l प्लस h ग्रेटर देन 0, दैट मीन जो राइट वाला पार्ट होगा, और जो l माइनस यानी कि x इज लेस देन यानी कि जो लेफ्ट वाले पार्ट हो। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है कि f ऑफ z इज इक्वल टू 3z प्लस 1। अब यहाँ पे सारे एंट्री, तो अगर हम सपोज इसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कंपेयर करें, ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस टी, तो यहाँ पे ए बी सी डी सारे क्या है, रियल नंबर है, तो सारे रियल नंबर है। और एक चीज याद रखना है कि जब हम डायग्राम बनाते हैं, मीन्स हमारे पास 4 प्लेन है, ठीक है। एक प्लेन तो कुछ इस तरीके से है, ये h प्लस है, एक प्लेन इस तरीके से है, ये h माइनस है। द वन प्लेन इज l प्लस एंड दिस इज l माइनस। अब जी ये वाला पार्ट है, ठीक है, बाउंड्री पार्ट हमेशा बाउंड्री पे जाता है, यानी कि अगर ये h प्लस है तो h प्लस हमेशा किस पे जाएगा, इसी पार्ट पे जाएगा। अब ये पॉजिटिव है तो अब ये पार्ट या तो यहां जाएगी या तो यहां पार्ट जाएगी। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सपोज यहां का एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते i। अगर ये सपोज यहां कहीं जा रहा है मीन्स सारे पार्ट यहां आ जाएंगे, अगर ये पॉइंट यहां कहीं आ रहा है मीन्स h प्लस सिंपल h प्लस में ही जाएगा। अब पुट कर देते हैं, सपोज यहां से एक पॉइंट ले लेते i, और i को जब यहां पे पुट करेंगे कि f ऑफ i, तो f ऑफ i क्या होगा, सिंपल i अपॉन 3i प्लस 1। तो i अपॉन 3i प्लस 1, हमें सिर्फ साइन चेंज चेक करना है, तो यहाँ पे हम इसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस 3i प्लस 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 3i प्लस 1, ये तो पॉजिटिव होगा, इसे लेना देना ही नहीं है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो i माइनस i प्लस 1 हो जाएगा और ये सिर्फ 3 बचेगा। सेकेंड वन इज i प्लस इन i इंटू 1, मतलब ये मीन्स दोनों पॉजिटिव है। अब दोनों पॉजिटिव यहाँ तो आ नहीं सकते, मीन्स अगर एक पॉइंट ये साइड जा रहा है मीन्स सारे पॉइंट किस साइड जाएंगे, बाउंड्री पे। तो बाउंड्री से हमारे बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मीन्स जो s प्लस है वो h प्लस पे ही जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि l प्लस पे, h माइनस पे और l माइनस पे, यानी कि जो मैप h प्लस है वो किस पे जाएगा, h प्लस पे, और h माइनस किस पे जाएगा, h माइनस पे। ये कह रहा है कि h प्लस h माइनस पे जाएगा, रॉन्ग। ये कह रहा है कि h प्लस l प्लस पे जाएगा, रॉन्ग। ये कह रहा है कि h प्लस l माइनस पे जाएगा, रॉन्ग। मीन्स द ओनली ऑप्शन इज a इज करेक्ट। Now the next question is 168, which is related to again sequence of function। फिर से क्वेश्चन आ गया जिसमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। तो सिंपल z इज टू n अपॉन n गिवन है, तो फिर वही बताना यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ये कह रहा है कि द सीक्वेंस fn ऑफ z एंड fn डैश z कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। तो अब कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली बताना है, तो ये तो क्लियरली हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। तो अब चेक करते हैं डेरिवेटिव। सपोज अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, n इंटू जेड इज टू n माइनस 1 अपॉन n, तो n करेक्ट। तो यहाँ पे जेड इज टू n माइनस 1 आ रहा है, तो यूनिफॉर्मली के लिए क्या लेते हैं हम, mn लेते हैं। mn यानी कि इसकी सुप्रीमम वैल्यू। तो सुप्रीमम वैल्यू कहाँ होगी, अभी हमारे पास इंटरवल जो डोमेन है वो पूरा यूनिट स्पेयर है, तो यूनिट स्पेयर है मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब वो बाउंड्री पे होगा। तो जब बाउंड्री पे पुट करेंगे तो 1, मीन्स ये 0 पे अप्रोच नहीं कर रहा है, मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड ये कह रहा है कि द सीरीज समेशन fn z कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन d। तो fn ऑफ z यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस करेगा। तो एक तो बाय यूजिंग वायरस्ट्रास थ्योरम हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि विच इज लेस देन 1/n एंड सीरीज 1/n इन रियल नंबर इज नॉट कन्वर्जेंट, तो देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। या फिर सिंपल हम मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/n कन्वर्जेंस नहीं करता है, तो देयरफॉर ये जो समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनेटिव fn ऑफ z कन्वर्जेंस नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो कन्वर्जेंस करेगा फॉर इच z बिलोंग्स टू d। तो सपोज यहां पे अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ रहा है, z इज टू n माइनस 1 एंड वेयर मॉड z इज लेस देन 1। अब मॉड z इज लेस देन 1 है और z इज टू n माइनस 1, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास z इज टू n अपॉन n है,
तो यहाँ पे जब हम लेंगे तो उसका डेरिवेटिव, तो ये n इंटू जेड एस टू एन माइनस वन एन, तो एन एन कैंसर, हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है जेड एस टू एन माइन। जब हम सीरीज लेंगे तो क्लियरली ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है विथ कि जो मॉड जेड की वैल्यू लेस देन वन है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज अगर मॉड जेड इज लेस देन वन है तो ये सीरीज कैसा होगा, कन्वर्जेंट। नाउ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट वन इज द सीक्वेंस एफ एन ऑफ जेड, यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं, सिर्फ कन्वर्जेंस पूछा, तो क्लियरली दिस फंक्शन इज converges for each z belongs to D. The sequence fn dash z does not converge and this z is equal to 0. अभी क्या कह रहा है कि सीक्वेंस fn dash z ये क्या नहीं कन्वर्ज करेगा अनलेस जब तक z की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो क्लियरली हमारे पास ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। जो नेक्स्ट अप्लाइड के 2 क्वेश्चन है वो एलपीपी के क्वेश्चन है, तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में तो कमेंट बॉक्स में आपको जो भी लिंक रहेगा वो मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ भी